Hello everyone, I am Ritika Susgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of Data Structure and Algorithm, we started our first unit. So first unit is based on introduction part where we already discuss about what is meant by data, what is meant by structure. Then also we discuss what is meant by data structure. Data is what here? Data is a collection of values or collection of element which are having the different data types, like data is in the form of integer also, string also, character also, or many more. Okay, and what is meant by structure? If we are having a particular data set, we are organizing this data in a particular way, so this is called as the structure. So what is meant by data structure here? So if you are having the data set of data, and we are providing some set of rules, and we are providing some algorithms for that particular data, so this is called as a data structure. So in data structure there are different techniques are used, like array को यूज करके हम डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं, प्रायोरिटी क्यू है, क्यू स्टैक. Okay, so there are many algorithms or many techniques are used in the data structure. Then we also discuss about the basic data structures and what are the terminologies are used in the data structures. Okay. So in this video we discuss about the classification of data structure, where the data structure is divided into the primitive data types and the non-primitive data types. Okay. So here first we discuss about the primitive data structure. So what are the types of data structure? See here, the primitive data structure and the non-primitive data structure. So primitive data structures are again characterized into the integer part, character, float, pointer, real and boolean values. Okay. So integer means what? जो भी हमारी वैल्यू होगी, जो भी हमारा डेटा होगा वो इंटीजर फॉर्म में होगा. ओके, 24 हो सकता है, 34, 123. ओके, कोई भी इंटीजर नंबर. सो वो जो इंटीजर नंबर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है. ओके, सो -20, -500 लाइक दिस. द नेक्स्ट इज व्हाट? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, कैरेक्टर. जो भी हमारा डेटा है वो कैरेक्टर हो सकता है, ए कैरेक्टर, बी कैरेक्टर, या फिर स्मॉल ए भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर वो हमारा एक डेटा हो सकता है. देन फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज, जैसे कि पॉइंट में जो भी वैल्यूज आते हैं 54.3, 99%, जो भी है वो सारे 99.2 ऑल्सो. ओके, सो दीज आर दी फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज. द नेक्स्ट इज अ पॉइंटर. सो इफ यू आर हर एक जो भी वैल्यूज होती है उसके लिए हम मेमोरी एलोकेट करते हैं कंप्यूटर के अंदर. सो जो भी हम मेमोरी एलोकेट करते हैं पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, उसको हमें पॉइंट करना है कि पर्टिकुलर वैल्यू को कौन सा हमने मेमोरी एलोकेट किया है, या फिर जो भी मेमोरी अवेलेबल है उसमें कौन सी वैल्यू हमने स्टोर की है. सो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द पॉइंटर कंसेप्ट. देन रियल वैल्यूज और बुलियन. बुलियन मीन्स वो ट्रू और वैल्यू, ट्रू और फॉल्स वैल्यू भी हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं. ओके, एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? जिसके अंदर अगेन टू पार्ट्स है, लीनियर एंड नॉन लीनियर. लीनियर इज अगेन कैरेक्टराइज्ड इनटू द स्टैटिक एंड डायनामिक. Okay, array, linked list, stack, queue, and non-linear is again divided into the tree and graph. Okay, so in this video we only discuss about the primitive data structure. Okay, before starting the primitive data structure, what is mean by static and dynamic? Okay, static means what? Stable. जो भी हमने वैल्यू कंसिडर की है, जो भी हमने डेटा कंसिडर किया है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन. और डायनामिक मीन्स व्हाट? उसकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, डेटा को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन. ओके, सो दिस इज अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड द डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर. So what is mean by primitive data structure? So primitive data structures are called as a primitive data types. So which contains the integer, character, float, double, pointer. So these are the different pointer data structures that can be hold a single value. So primitive data structure is a data structure that can hold a single value in a specific location.
The value to the primitive data structure is provided by the programmer. There are following the 4 primitive data structures. तो मोस्टली कौन से यूज किए जाते हैं? इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, कैरेक्टर. सो ये छोड़ के भी कौन से है? डबल यूज कर सकते हैं हम. ठीक है. So the integer data type contains the numeric values. It contains the whole numbers that can either negative or positive. As I said already, integer एक positive value हो सकती है या फिर negative value हो सकती है. The float is a data type that can hold the decimal values. When the precision of decimal value increases, the double data type is used. So float normally कब use करते हैं? Double कब use करते हैं? So float कब use करते हैं? अगर हमें marks consider करने हैं. Okay, student के marks fill करने हैं. तो मार्क्स कौन से फॉर्म में हो सकते हैं? 78.3, 83.5% या फिर 93.5. ओके, सो ये क्या है? सारे फ्लोट वैल्यूज में आता है. बट अगर हमारा प्रिसीजन बढ़ता है, मीन्स हम अगर कंसीडर करते हैं 12,000.50 या फिर 53.3333. ओके, सो जो भी लार्ज वैल्यू होगी उसको हम डबल डेटा टाइप में कंसीडर कर सकते हैं, या फिर सैलरी भी हो सकती है. ओके, सो वो हम डबल डेटा टाइप्स में कंसीडर कर सकते हैं. देन बुलियन, इट इज अ डेटा टाइप दैट कैन होल्ड आइदर अ ट्रू और फॉल्स वैल्यू. सो इट इज मेनली यूज्ड फॉर चेकिंग द कंडीशंस. अगर हमें चेक करने की जो भी गिवन कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है, सो इन दैट केस वी यूज दिस बुलियन प्रिमिटिव डेटा टाइप. The next is a character. So it is a data type that can hold a single character value both in uppercase also and the lower case also. So A capital एक character हो सकता है और small a भी एक character हो सकता है. So these are the different primitive data structures. तो सी हियर डेटा टाइप्स के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आते हैं. प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर बुलियन टाइप है जो कि वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स. न्यूमेरिक टाइप के अंदर अगेन 2 पार्ट्स आते हैं, कैरेक्टर वैल्यू आती है और इंटीग्रल वैल्यू आती है, जिसका टाइप क्या होगा? कैरेक्टर कैर होगा. देन इंटीजर के अंदर होगा बाइट, स्टॉट, इंटीजर, लॉन्ग, और फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर क्या होगा? फ्लोट एंड डबल. ओके, सो दिस आर दी डेटा टाइप्स. देन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से हैं? स्ट्रिंग, एरे और नॉन प्रिमिटिव के अंदर स्ट्रिंग आते हैं, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू. सो दिस आर दी नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स. Okay. So see, I will explain this concept in detail. Okay, so data type, primitive data structure, where we are having the numeric and non-numeric data, and the second thing is what? Non-numeric data. Again, numeric data is characterized into the 2 parts. The first is integer and second is what? Real. And here non-numeric again characterized into the 2 parts. First is what? Character हो सकता है और सेकेंड केस के अंदर स्ट्रिंग हो सकती है.
ओके स्ट्रीट। सो इंटीजर के अंदर अगेन शॉर्ट एंड लॉन्ग, शॉर्ट एक शॉर्ट नंबर हो सकता है या फिर लॉन्ग भी नंबर हो सकता है, और रियल के अंदर फ्लोट एंड डबल। एंड डबल। ओके अगेन शॉर्ट जो नंबर होगा, लॉन्ग तो हमारा शॉर्ट नंबर और लॉन्ग नंबर में क्या होगा, इंटीजर। इंटीजर नंबर जो होगा वो रोल नंबर हो सकता है, मार्क्स भी कंसिडर कर सकते हैं इंटीजर नंबर के अंदर, जो कि वो शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट में होगा, जिसके अंदर आएंगे अगेन A1। A1 इज व्हाट, साइन नंबर हो सकता है, निगेटिव साइन हो सकता है, पॉजिटिव साइन, और अनसाइन के अंदर आएगा A2 अनसाइन नंबर, ओनली पॉजिटिव नंबर, जिसको कोई भी साइन हमने नहीं किया है, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। ओके सो इसके कीवर्ड्स क्या होंगे, आपने अगर सी डिस्कस किया होगा, सी के अंदर आपने लर्न किया होगा कीवर्ड्स। ओके सो व्हाट आर द कीवर्ड्स फॉर दैट पर्टिकुलर data structure? ओके सो कीवर्ड्स क्या है, अगर साइन अगर नंबर है हमारा, कोई भी एक साइन नंबर है, अगर साइन अगर नंबर है हमारा, सो उसके लिए कीवर्ड होगा इंटीजर। अनसाइन नंबर है सो उसके लिए कीवर्ड होगा अनसाइन। देन लॉन्ग है सो उसके लिए होगा लॉन्ग, ओनली लॉन्ग। फ्लोट है सो उसके लिए कीवर्ड होगा फ्लोट। डबल है सो उसके लिए कीवर्ड होगा स्मॉल में होगा, ओके डबल स्मॉल। कैरेक्टर के लिए होगा कैर, और स्ट्रिंग के लिए होगा, स्ट्रिंग अगर होती है तो भी होगा वो कैर। ओके क्लियर। सो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल बताती हूँ हर एक। ओके एग्जांपल, सो अगर साइन है सो यहाँ पे एग्जांपल कौन सा हो सकता है, साइन के अंदर -24 और प्लस जिसके अंदर हमने साइन अप्लाई किया होगा 24। ओके -24 हो सकता है, -100 हो सकता है, लाइक दिस नेगेटिव। ओके पॉजिटिव और प्लस और माइनस साइन।
या फिर माइनस साइन। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैं बस इतना ही लिखती हूँ। ओके, अनसाइन, उसके अंदर कोई भी साइन नंबर नहीं है, ओनली 24 और 1 2 5 3 like this. So this is a साइन नंबर, अनसाइन नंबर सॉरी। लॉन्ग, जो हमारा मोबाइल नंबर वगैरह होते हैं वो हमारे लॉन्ग में हो सकते हैं। ओके, ये लॉन्ग में। फ्लोट नंबर मार्क्स जो होते हैं 98.34, सो ये हमारे फ्लोट टाइप हो सकता है डेटा। देन डबल, जिसकी वैल्यू लाइक समथिंग लाइक 56,743.5556। ओके, तो ये होगा डबल के अंदर। कैरेक्टर जो है वो कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट यूज करेंगे, और कैरेक्टर कुछ इस तरह से भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है। और स्ट्रिंग मीन्स वर्ड, जो भी स्ट्रिंग्स होती है उसको हमें डबल कोट में लिखना पड़ता है। ओके, स्ट्रिंग मीन्स यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ डेटा स्ट्रक्चर, सो डेटा स्ट्रक्चर, सो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस इज अ स्ट्रिंग। उसके लिए कीवर्ड्स ये होंगे, सो ये साइन के लिए, ये साइन के लिए, ये अनसाइन के लिए, ये एरे यूज करती हूँ मैं, ये साइन के लिए, ये अनसाइन के लिए, ये लॉन्ग के लिए, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। ओके, सो नॉर्मली रेंज क्या होती है अगर हम कोई भी इंटीजर नंबर कंसिडर करते हैं। सो मेमोरी कितनी एलोकेट की जाती है हर एक डेटा टाइप के लिए, मेमोरी स्पेस। ओके, तो अगर हमारे पास इंटीजर नंबर है तो उसके लिए 2 बाइट्स एलोकेट होते हैं। अगर अनसाइन नंबर है तो कभी भी 2 बाइट्स एलोकेट होते हैं। लॉन्ग नंबर है हमारे पास तो उसके लिए मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स एलोकेट होते हैं, सॉरी 4 बाइट्स एलोकेट होते हैं। फ्लोट नंबर है तो 4 बाइट्स एलोकेट होते हैं। देन डबल नंबर है तो 8 बाइट्स एलोकेट होते हैं मेमोरी के अंदर। अगर हमारे पास सिंगल कैरेक्टर है तो वो बस 1 बाइट एलोकेट करता है, और ये भी कैरेक्टर मीन्स 1 बाइट। सो इसके अंदर बस डिफरेंस क्या होगा, अगर ये कैरेक्टर 1 बाइट एलोकेट कर रहा है तो यहाँ पे कितने बाइट एलोकेट करेगा, ये कैरेक्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बाइट एलोकेट करेगा फॉर द स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ, सो नेक्स्ट इज व्हाट, सो यहाँ पे एक मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को कि कैसे मेमोरी एलोकेट की जाती है। ओके, सो 2 बाइट मीन्स व्हाट, सी हियर, 8 bit is equal to 1 byte.
Okay, 1024 bytes is equal to 1 KB. Then 1024 KB means 1 MB and 1024 MB means 1 GB. ओके, तो ये आप लोगों को पता होगा. सो यहाँ पे देखो, इंटीजर अगर मेरे पास एक नंबर है, एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक इंटीजर a इज इक्वल टू 24, ये अगर एक नंबर है मेरे पास, तो इसके लिए कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? 2 बाइट्स. 2 bytes for integer number, so that total 16 bits are required to store the value 24. Machine only can understand binary language. So, machine convert this 24 into the binary number. Okay. So let us see here how the machine convert. So what is the value for binary number for 24? So we have to create here total 16 bits. Eleven, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16. सो एक ब्लॉक ज़्यादा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं रिमूव करती हूँ. टोटल 16 बीट्स हमें चाहिए. सो 24 का बाइनरी क्या होता है? बाइनरी कन्वर्जन फॉर 24. Binary conversion is 11000. Okay, correct. So we have to store this value here 11000. So यहाँ पे 1 बिट होगा, यहाँ पे 1 बिट होगा, ये 0 बिट होगा, ये 0 बिट होगा, एंड लास्ट वाला इज ऑल्सो 0 बिट. ओके, एंड रिमेनिंग जो भी ये होंगे वैल्यूज प्रीवियस वाले वो 0 बिट होंगे. ठीक है, और हमें क्या करना है? 16 बिट जनरेट करना है मेमोरी एलोकेशन. So how we can know this particular number 24 is a positive number or a negative number? So यहाँ पे देखो a is equal to 24 is a positive number. Okay, but how we know the a? अगर हमारे पास a is equal to -24 है, so हम उसको कैसे मेमोरी एलोकेट करेंगे? So ये जो लास्ट वाला जो बीट है हमारे पास, ये जो लास्ट बीट अगर
अगर ये लास्ट बीट क्या इंडिकेट करता है, साइन इंडिकेट करता है, साइन इंडिकेटर. Okay, when if the number is here 0, it means positive number, that is number that is plus 24. एंड अगर यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 1 है, that is it indicates अगर यहाँ पे 1 है, so this is a negative number, that is minus 24. So this is a sign indicator. Okay, similarly for unsigned number also long 4 byte required है. So total 32 bits लगेंगे float, double, character और string के लिए भी. Okay. So this is a primitive data structure. Thank you.